Hello students, in today's session we will discuss about the application of break and continue statement in our C program. First of all, we are going to discuss about the break statement. The break statement stops the execution of all statements followed to it and transfer the program control to out of the block in which it present. We can write the break statement with the syntax. Simply write break and just place a semicolon after the break. Let us explain it with the help of some syntax of the break statement and the application area where we are using. Suppose we are using three different type of loop that is available in our C program: while loop, do while loop and for loop. The working of break statement is, if we are using any looping statement and if we are providing a break statement inside the block, so what it does, it stop the execution of all the statement followed to break statement and transfer the program control out of the block. We can see with the example also. Suppose we have written a while statement with a text expression, and inside the while loop we are using a break. So what the break does, whenever the program controls reaches to the break statement, is transfer the program control out of the block in which it appears, right? In case of do while loop, again if we are using a break statement, it again transfer the program control out of the block. And similarly in for loop, if break statement appears, it transfer the program control out of the loop block. So you can see we are using a break statement along with a if condition. Why we are using if condition? Because we know that the loop statements are used to repeat a statement or a set of statement. But if we want to write a break statement inside a loop, so whenever we are iterating a loop, in a first iteration program control transfer to the break statement and it break the loop. To avoid this thing, we are using if condition बिफोर अ ब्रेक स्टेटमेंट. मतलब फिर से आप समझ लीजिए, ब्रेक स्टेटमेंट हम तब यूज करते हैं जब किसी एक क्राइटेरिया को मैच करने के बाद हमें लूप से बाहर निकलना हो, राइट? अगर हम बिना किसी क्राइटेरिया के, बिना किसी कंडीशन के ब्रेक लिखेंगे तो जैसे लूप के अंदर एग्जीक्यूशन होगा और प्रोग्राम कंट्रोल ब्रेक तक पहुंचेगा, ये ब्रेक करके लूप को बाहर निकाल देगा, राइट? चलिए एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं कि कहां पर इसको यूज करना चाहिए हमें. सपोज वी आर राइटिंग अ प्रोग्राम वेयर वी आर यूजिंग अ ब्रेक स्टेटमेंट. वी आर यूजिंग द सेम प्रोग्राम टू प्रिंट द नंबर्स फ्रॉम 1 to 5 and we are using the same program here, right? Here we are writing the program to print the statement support Gurukul. Right, these two printf statements are there, and in between these two printf statements we are using a break statement. So what we want, we are saying if the x is equal to 2 then program breaks. तो जैसे ही प्रोग्राम हम लिखने के बाद यहां पर एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे, x की इनिशियल वैल्यू क्या है यहां पर 1, x लेस देन 5 कंडीशन ट्रू हो रही है तो प्रोग्राम कंट्रोल इसके अंदर जाएगा, लूप के अंदर जाएगा. तो पहला स्टेटमेंट सपोर्ट ये प्रिंट कर देगा हमारी स्क्रीन पर, एंड आफ्टर दैट नाउ इट चेक वेदर द x इज इक्वल टू 2. हियर द कंडीशन फॉल्स. तो इफ के प्रॉपर्टी, इफ स्टेटमेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये स्टेटमेंट एक्सिक्यूट नहीं होगा और इसके जस्ट बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारा गुरुकुल ये प्रिंट कर देगा. नाउ वी आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ x बाय 1. आफ्टर दैट वन program control transfer for the again testing the condition. Now the x is equal to 2 less than 5. The condition is true, so it prints support.
but whenever if condition we are testing x is equal to 2, now it becomes true. So next statement, break will execute and it transfer the program control out of the block. So here the program ends. तो अगर इस प्रोग्राम का हम आउटपुट देखें, so आपको जो आउटपुट मिलेगा that will be support Gurukul and in a new line only support, right? What happen if we are using a continue statement? So let's see about a continue statement. Continue statement also stops the execution of the loop, not the loop, continue statement also stop the execution of all the statements followed to it, and it again transfer the program control for the next iteration. Iteration I think आपको याद होगा, लूप में हमने बताया था एक बार लूप जो रन करता है जिसको हम एग्जीक्यूशन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज आइटरेशन, राइट? सो यहां पर एग्जाम्पल से भी डायग्राम जो यहां पे देख रहे हैं आप, इस डायग्राम में इंस्टेड ऑफ राइटिंग कंटिन्यू, देखिए ब्रेक लिखने से क्या हो रहा था, प्रोग्राम कंट्रोल लूप से बाहर निकल जा रहा था, लेकिन जब हम कंटिन्यू यूज कर रहे हैं तो ये प्रोग्राम कंट्रोल को सीधे स्टार्टिंग बिगिनिंग पॉइंट पे फिर से पहुंचा दे रहा है, या इसी कहते हैं फॉर नेक्स्ट आइटरेशन. सिमिलरली कंटिन्यू यहां पे यूज कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि यहां पे व्हाइल लूप का बिगिनिंग पॉइंट क्या होगा, जब कंडीशन टेस्ट हो रही है. सो डू व्हाइल लूप में भी बिगिनिंग पॉइंट क्या होगा, जहां पे कंडीशन टेस्ट हो रही है. सो ये प्रोग्राम कंट्रोल को ट्रांसफर कर देगा कंडीशन टेस्ट करने के लिए. लेकिन इस केस में जब हम ब्रेक यूज कर रहे हैं तो कहां जा रहा था, इस व्हाइल के बाहर, राइट? सिमिलरली फॉर लूप में भी जब कंटिन्यूस यूज करेंगे तो फिर ये नेक्स्ट आइटरेशन के लिए जाएगा. इस एरो का मतलब ये है कि ये सीधे कंडीशन टेस्टिंग के लिए जा रहा है, ना कि वेरिएबल इनिशियलाइजेशन फिर से होगा. फॉर लूप में यूज करने का मतलब भी ऐसा नहीं है कि ये वेरिएबल को इनिशियलाइज दोबारा करेगा. इनिशियलाइजेशन केवल एक ही बार होती है फॉर लूप में. इट अगेन टेस्ट द कंडीशन देन एग्जीक्यूट द कोड, राइट? ओके, लेट्स use the same example for the continue statement also. Again we are writing the program, we are using x is equal to 1 as an integer variable, and we are using the same code here. Now here you can see when the value of x is equal to 2, this condition becomes true, the program control transfer to this point, right? So can you see what are the output produced in this particular case? क्या आपका आंसर जो यहां लिखा है यही है? बिल्कुल वीडियो पॉज करिए, सोचिए. नो, इट इज अ रॉन्ग आंसर. क्यों है रॉन्ग, इसको समझिए. पहली बार जब x की वैल्यू 1 होगी, when x इक्वल टू 1, तो ये कंडीशन ट्रू होगी. तो ट्रू होने के बाद ये प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. देन इफ कंडीशन पे आएगा, कंडीशन अब ये क्या होगी, फॉल्स, तो प्रोग्राम कंट्रोल जाएगा नेक्स्ट पॉइंट 9 पर. अब यहां पर गुरुकुल प्रिंट कर देगा और न्यू लाइन में प्रोग्राम कंट्रोल ट्रांसफर होगा, राइट? सो ये लाइन प्रिंट हो गई और नई लाइन में कंट्रोल ट्रांसफर हो गई. नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका इसके बाद इंक्रीमेंट ऑपरेशन, x की वैल्यू इंक्रीज होकर अब कितनी हो गई, 2. नाउ द कर्ली ब्रेसेस अपीयर्स, इट मींस इट अगेन स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट. फिर से कंडीशन टेस्ट होगी. एट दिस मोमेंट x इज इक्वल टू 2 बिकॉज वी आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ x बाई 1. सो नाउ द वैल्यू ऑफ x इज 2 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू. देन इट प्रोग्राम कंट्रोल ट्रांसफर फॉर द प्रिंटिंग स्टेटमेंट. हियर it prints support this line. After that it tests the condition, and here because the value of x becomes 2, so this returns as a true statement. So next statement continue will execute, और जैसे continue मिलेगा तो continue क्या करेगा, प्रोग्राम कंट्रोल को यहां से फिर से भेज देगा इसी पॉइंट पर. तो क्या इंक्रीमेंट ऑपरेशन हुआ, नहीं हुआ, राइट? तो ऐसे केस में ये आउटपुट इसके बाद का ये नहीं मिलेगा आपको.
इसकी जगह पे फिर से ये कंडीशन, अभी x की वैल्यू कितनी है 2 ही है, फिर से नीचे आएगा, सपोर्ट को फिर से प्रिंट कर देगा। सो जो आउटपुट आपको मिलेगा वो मिलेगा सपोर्ट गुरुकुल, एंड इन न्यू लाइन सपोर्ट, एंड n नंबर ऑफ टाइम्स, इनफाइनाइट टाइम ये लूप रन करता रहेगा। और देखिए यहां पे आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। लास्ट लेक्चर जो हमने लूप पे दिया था, हमने ये कहा था कि जो 3 स्टेटमेंट थे, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, कंडीशन टेस्टिंग और ऑपरेशन ऑफ लूप कंट्रोल वेरिएबल, इनमें से कोई भी एक मिसिंग होगा तो लूप का बिहेवियर आपके लिए सुटेबल नहीं होगा, राइट। और वही हो रहा है यहां पर। ये जो लास्ट में ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे हम, इंक्रीमेंट ऑपरेशन, ये इस लूप कंट्रोल वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करने के लिए था, चेंज करने के लिए। और बिकॉज व्हेन वी आर यूजिंग कंटिन्यू स्टेटमेंट हियर, दिस वैल्यू इज नॉट अपडेटेड। सो वंस द वैल्यू इज ट्रू, वंस द कंडीशन इज ट्रू, इट ट्रू फॉर इनफाइनाइट टाइम्स, राइट। ओके, नाउ we are using some another example. Suppose that we are using we want to solve a particular problem to print all numbers from 1 to 10 without printing 7. Suppose ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, राइट। ये हमें प्रोग्राम बनाना है। You have to write a program to print all numbers from 1 to 10 without printing 7. So लॉजिक कैसे यूज करना होगा हमें, चलिए इसके लिए हम प्रोग्राम यहीं पे करके देखते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h, ये आपकी हेडर फाइल हो गई। देन वी हैव टू राइट इंटीजर मेन। नाउ वी हैव टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, से इंटीजर x। वी हैव टू प्रोवाइड द वैल्यू, से x इज इक्वल टू 1, राइट। इफ वी आर यूजिंग while loop to print the numbers, suppose we are writing while, we have to print from 1 to 10, so x less than equal to 10. So for printing you can write printf %d value of x, ये x की वैल्यू प्रिंट कर देगा। देन आपको x की वैल्यू को इंक्रीज भी करना है, so x प्लस प्लस। फाइनली ऐसा लिखने पर हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, ये 1 से लेके, देन वी कैन यूज रिटर्न 0 देन सेमीकोलन। ऐसा लिखने से ये 1 to 10 सारे नंबर्स को प्रिंट कर देगा। लेकिन कंडीशन क्या है हमारे लिए, हमें जब x की वैल्यू 7 हो तो प्रिंट नहीं करना है। सो फॉर दिस वन, इन बिटवीन किसी एलिमेंट को छोड़ना है। सो वी कैन राइट इफ x इज इक्वल टू 7, so we can use continue, right? So continue यूज करने से क्या फर्क पड़ रहा है हमें, जैसे ही x की वैल्यू 7 होगी तो अब ये प्रिंटिंग हमें नहीं देनी है, राइट। तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, यहां पर भी हमें इस इंक्रीमेंट ऑपरेशन को कहां प्लेस करना होगा, इस इंक्रीमेंट ऑपरेशन को हमें लूप से पहले ही प्रिंट करना होगा। स्टेटमेंट इंक्रीमेंट का यहीं पर देना होगा। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग x हियर, बिकॉज हमें लाइफ इनफाइनाइट टाइम के लिए नहीं रन करना है, सो वी कैन राइट x प्लस प्लस एट दिस पॉइंट। क्लियर? ओके, I know the complexity of while loop is difficult when we are using a multiple statement inside a while. So instead of using while statement, we can also use a for statement to print the same output. What we can do, we are writing from the integer main only, integer main, then we are using integer x, a variable. Now we are using a for, from where we want to print from x equal to 1 up to x less than equal to 10. What should be the operation? X plus plus, the printing statement printf %d, then value of x, right? Then you can write return 0, right? अब यहां पर जब x की वैल्यू चेंज करनी है हमें, कब, एक वैल्यू चेंज करनी है लेकिन 7 पे प्रिंट नहीं करना है।
So now we can write if x is equal to 7, then we can use continue. राइट तो जैसे ही जब लूप पहले क्या हुआ, x की वैल्यू 1 हुई, स्टेटमेंट 1, फिर यहां से कंडीशन टेस्ट किया, कंडीशन ट्रू मिली, इनसाइड आया, x इक्वल टू 7 चेक किया, कंडीशन फॉल्स तो प्रिंट किया, फिर यहां से इंक्रीमेंट होगा, x की वैल्यू 1 इंक्रीज हो गई, अब x की वैल्यू हो गई 2, फिर यहां पर आएगा 2 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, फिर इनसाइड आएगा और ये प्रोसेस मूव करता रहेगा। तो 1 जो आउटपुट में मिलेगा आपको आउटपुट स्क्रीन पर, ये 1 2 3 कॉमा नहीं होगा आउटपुट पे, लेकिन जस्ट विजिबिलिटी क्लियर करने के लिए हम कॉमा लगा रहे हैं। अगर हम यहाँ प्रिंटिंग में कॉमा लगा देंगे तो कॉमा भी आता रहेगा, कोई इशू नहीं है। 1 2 3 4 5 6, बट जैसे ही 7 पर आया, x की वैल्यू 7 हो गई, 7 पे कंडीशन ट्रू मिल गई, अब यहीं से ये प्रोग्राम कंट्रोल को डायरेक्ट कर देगा नेक्स्ट आइटरेशन के लिए। x की वैल्यू इंक्रीज होगी, अब 7 से हो गई 8, कंडीशन ट्रू, फिर इनसाइड आएगा, अब ये कंडीशन हमारी हो गई क्या, दिस कंडीशन बिकम्स फॉल्स, फिर प्रिंट करेगा। सो 6 के बाद 8 9 एंड 10, दिस विल बी योर आउटपुट। क्लियर? ओके, सो दिस इज द वन ऑफ द एग्जांपल टू यूज कंटिन्यू स्टेटमेंट. How we can use a break statement? Suppose we want to print the all numbers from n1 to n2, and we want to provide a number if the number in between from n1 to n2, then it will print all the numbers from n1 to your number. चलिए क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं, क्या करना चाहते हैं हम यहां पर। आपके पास जो नंबर प्रिंट करना है n1 से n2 तक के सारे नंबर को प्रिंट करना है, लेकिन कंडीशन क्या है इसको प्रिंट करने के लिए? द कंडीशन इज द नंबर x प्रोवाइडेड बाय यू इफ इट इज इन बिटवीन n1 एंड n2, सो इट हैव टू प्रिंट n1 to x ओनली. राइट? प्रॉब्लम समझ में आ गया है कि अगर आपसे कहा जाए 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर प्रिंट करना है, लेकिन जो x की वैल्यू दे रहे हैं वो इन दोनों के बीच में कोई नंबर होता है, से इट इज 7, सो इट शुड प्रिंट ओनली फ्रॉम 1 to 7. तो इसके लिए प्रोग्राम चलिए करके देखते हैं क्या करना है हमें. अगेन वी आर राइटिंग अ प्रोग्राम यूजिंग अ हेडर फाइल इंक्लूड stdio.h, then integer main. We have to declare a variable, say integer x, right? We want a number, suppose यहां पे 100 से 200 के बीच में हमें प्रिंट करना है, so we can provide another number, say n1 n2 की वैल्यू ले लेते हैं यहां पे, n1 is equal to say 100 and n2 is equal to say it is 200. Now we have to provide the value printf enter value of x, this is a message, then we can write scanf %d and %x. right? Now we are using a for loop. For we should have a loop control variable here. So for declaring a loop control variable, we are declaring a variable, say integer, any variable, say I, right? For I is equal to, कहां से शुरुआत करनी है? n1 से, n1 सेमीकोलन, कहां तक जाना है? I लेस देन इक्वल टू n2, और सारे नंबर प्रिंट करना है, यस, I प्लस प्लस. So we can write a printing statement here, printf %d the number I, right? ये ऐसा प्रोग्राम किया, देन हमने किया रिटर्न 0, देन प्रोग्राम कंप्लीट. लेकिन अभी क्या कर रहा है, ये n1 से लेके n2 तक के सारे नंबर्स को प्रिंट कर रहा है. n1 और n2 की वैल्यू आप रन टाइम पे भी ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. राइट? नाउ if the value x lies in between n1 and n2, so हमें ये चेक करने के लिए क्या होगा, I की वैल्यू से हम कंपेयर कर लें. क्या करते हैं हम यहां पे, if
i इज इक्वल टू x, अगर i की वैल्यू x के बराबर हो जाती है, मतलब कि ये नंबर इसके बीच में आ रहा है, तो हम क्या कर दें, सीधे ब्रेक कर दें। सो क्या करेगा, अब ये प्रोग्राम क्या करेगा, अगर x की वैल्यू, इफ आउटपुट पे लॉजिक क्या हो रहा है इसका कि इफ x लाइज बिटवीन दिस कंडीशन अकर्स, सो प्रिंट कहां से करेगा, n1 से x तक प्रिंट करेगा, राइट, अदरवाइज n1 से n2 तक प्रिंट करेगा। आई थिंक ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट के ऊपर। थैंक यू ऑल।